Welcome to Takshila English Medium School. Myself, Hema Gujar. Today I will start second part of crop production and its management. First lesson. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सोइंग के बारे में बताया था, आज हमारा सेकेंड वीडियो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम कैसे करें। हमने सीड्स को सो कर दिया। आफ्टर सोइंग वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. These are obtained from soil. Because leave the field uncultivated for one or more seasons, this practice is called fallowing. Add manure and fertilizers to the field from time to time. But first question arises, what is manure? The substance which are added to the field in the form of nutrients for growing good crops are called manures and fertilizers. जैसा कि you know our body need food because to get energy. जैसे कि हमारी बॉडी को फूड चाहिए तो हमें एनर्जी आती है। इसी तरह अगर हम क्रॉप्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे उन्हें गुड क्रॉप्स हमारी ग्रो होगी। तो व्हाट इज मैन्योर? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposition of plant and animal waste. These manures are of three types: farmyard manure, green manure, compost. Farmyard manure means it consists of animal dung, straw, leaves, urine and some other farmyard waste. And green manures, it consists of green plants. And compost, it is the manure obtained by the decomposition of dead plants and animals. ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैन्योर। अब हम जब मैन्योर यूज़ करते हैं उसकी कुछ एडवांटेज है। इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, इट मेक्स सॉइल porous, exchange of gases thus become easier. It increases the number of soil-friendly soil microbes. These are the advantages of manure. Then next, fertilizers. What is mean by fertilizers? Fertilizers are chemical substance and manure are organic substance which are rich in a particular nutrients. Fertilizers, you know, some fertilizers are urea, CAN, diammonium phosphate. These are the fertilizers. And the advantage of fertilizers are they are easy to handle, store and transport. They provide specific nutrients to soil. अब एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। तो फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेज है जैसे कि they make the soil less fertile and they are a source of water pollution. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा जो तुम्हारी बुक में टेबल 1.1 में डिफरेंस दे रखा है वो तुम्हें पढ़ना है। अब हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आता है इरिगेशन। व्हाट इज मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। क्रॉप्स को जो हम वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं इरिगेशंस। एंड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप्स। Germination of seeds does not take place without water. Nutrients cannot move up from the soil in the absence of water.
लेकिन जो फार्मर इरिगेशन करता है वो पानी कहाँ से लेता है, वाटर कहाँ से लेता है? सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस आर विद वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, rivers and dams. There are two types of irrigation, two methods. First, traditional methods of irrigation. जो पहले ज़माने में फार्मर इरिगेशन का यूज़ करते थे वो ट्रेडिशनल मेथड करते थे, लेकिन वो मेथड में लेबर इज़ यूज्ड. So these methods are cheaper but less efficient. And traditional methods are मोट, चेन पंप, राहत, धेकली. लेकिन जो आजकल फार्मर यूज़ करता है वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन करता है. जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड मॉडर्न मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. Sprinkler system means there are perpendicular pipes with rotating nozzles on the top joined to the main pipelines at regular intervals. जैसा कि आपने स्प्रिंकलर कई फील्ड्स में देखा होगा, फाउंटेन चलता है, चारों तरफ एक जैसा पानी प्लांट्स को मिलता है, वो था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम. एंड ड्रिप सिस्टम, इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप at the position of the roots. It is an economical method as water is not wasted at all. जो अगर हम कहें irrigation method is the best drip system, then next topic, removal of weeds, weeding. Weeds means unwanted and uncultivated plants that grow along with the crop plants. मीन्स जो मेन क्रॉप होती है उसके आसपास कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और उन अनवांटेड प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, वीड्स. अब कॉमन वीड्स आर चौली, बथुआ, जावी. दीज आर द वीड्स. वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड बिकॉज वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट जो मेन क्रॉप को मिलनी चाहिए वो हमारी वीड्स ले लेती है. इसलिए हमें द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. तो वीड्स को निकालना बहुत जरूरी होता है. आफ्टर वीड्स जब हमने वीड्स निकाल दी तो इसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग चालू होता है कि अब फसल की कटाई कैसे करें. हार्वेस्टिंग, once a crop is mature, farmers cut it. The process of cutting and gathering of crops is called harvesting. In harvesting, crops are cut close to the ground. This harvesting is followed by threshing and winnowing. आपने अभी वीट का सीज़न है तो वीट को कट करते हुए देखा होगा जिसमें वो थ्रेशर का यूज़ करते हैं. तो थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग या तो मशीन से किया जाता है बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर. एक मशीन और होती है कंबाइन. अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. अब हमने हार्वेस्ट कर लिया. नेक्स्ट लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज स्टोरेज. अब क्रॉप्स को स्टोर किया कैसे किया जाए. स्टोरेज, फूड ग्रेन्स ऑल्सो हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट, worms and insects. Storage is done on a small scale or a large scale. अगर हमें लार्ज स्केल में स्टोर करना हो तो हम गनी बैग्स या सिलोस का यूज़ करते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का ये लास्ट टॉपिक हुआ स्टोरेज. देन फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हम फूड कैसे लेते हैं. अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, हनी, फिश are obtained from animals. Rearing of animals on a large scale with proper food,
shelter and care is called animal husbandry. Animals are raised in farms. So I finish first chapter. अब मैं कुछ होमवर्क दूंगी, वो होमवर्क तुम्हें करना है.